Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Nazir Ahmed Malik, District Resource Person at Kupwara. Today I am going to deliver a lesson on the maps. My today's topic is maps. It is from class 6th. So class 6 students are requested to see, to interact this lesson, and it is a very useful lesson for you. My dear students, प्यारे बच्चों, आप छठी जमात के बच्चे हैं. आज जो मेरा टॉपिक है सोशल साइंस में, वो मेरा मैप्स है. तो मैप्स आपकी किताब से, आपकी ज्योग्राफी से हमने लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट इज अ मैप. मैप क्या होता है? अ मैप is a representation, a map is a representation or drawing of Earth's surface, or drawing of Earth's surface or part of it, or a part of it drawn on a flat surface, drawn on a flat surface, or plain sheet of paper. मेरे बच्चों, a map is representation or drawing of Earth's surface. अगर हम ज़मीन के सरफेस को एक खींचना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो हमारे ज़मीन पे मौजूद है, ज़मीन के जो फीचर्स हैं, अगर हम इनको ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैप जो है ये इसी की एक रिप्रेजेंटेशन है. इट रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए प्लेन शीट ऑफ पेपर, and it shows mountains, plateaus, plains, oceans, countries, continents, etc. So for this purpose we need a map. Before map, we have already discussed with you the globe. If we want to know the whole earth, talk about the whole earth, then we need globe. A globe helps us to know the earth as a whole, to know the shape of the earth, and we are able to know only some information, that is continents, countries, oceans are shown on the globe. But if we want to know more information of a country, of a state, of a district, of a village, of a city, though in that case globe cannot help us. In that case maps can help us. So map can give us more and more information than that of the globe. My dear students,
the map word has been derived from Latin word mappa, M-A-P-P-O, mappo, which means a cover cloth, or a tablecloth, which means a cover cloth or a tablecloth, a piece of cloth. So, mappo has come from the Latin word a cover cloth or a tablecloth. If we look towards the past, अगर हम माजी की तरफ देखेंगे तो इजिप्टियंस जो थे, जो मिस्र के लोग थे, दे वर द फर्स्ट पीपल, वो पहले लोग थे who invented this map. But at that time the map was drawn on the clay tablet. It was drawn on the clay tablet. A sheet of clay, मिट्टी का एक शीट बनाया जाता था, एक टेबल जैसा शीट बनाया जाता था मिट्टी का, उसी पर ये मैप ड्रॉ किया जाता था. It was before 2300 BC. इससे पहले Egyptians use maps, बट ये उनने पहले ड्रॉ किया इसको एक क्ले टैबलेट पर, एक क्ले शीट पर, मिट्टी के एक बड़े शीट पर उन्होंने इसको ड्रॉ किया. एंड दिस मैप वाज मोस्टली यूज्ड फॉर द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, to know the boundaries of the land or the property. If we want to know the boundaries of the land or the property, we use this map. This map was used by the Egyptians in this form, but nowadays map making is a science, and the science of map making is called cartography. And it was first an Egyptian geographer whose name was Ptolemy. He was the first person who prepared a map. He was an Egyptian geographer. Ptolemy was an Egyptian geographer, and in his map he first of all draw the north line. आप देखेंगे आपका जो मैप है उसके राइट हैंड में यहाँ पर दिया गया एक ऐसे, इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं. तो उसे फर्स्ट ऑफ नॉर्थ लाइन दे दी. तो नॉर्थ लाइन से हम डिटेक्ट करते हैं कि अगर ये नॉर्थ लाइन किसी मैप पर मौजूद न हो, मेरे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये नॉर्थ लाइन हम नहीं देखेंगे, दिस नॉर्थ लाइन वाज इन्वेंटेड बाय द Ptolemy, who was the Egyptian geographer. So by this north line we come to know that the top of the map shows the north. अगर ये अब किसी मैप पर ये एरो नहीं दिया है, ये नॉर्थ लाइन नहीं दी गई है, तो हमें एज्यूम करना है कि द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शोज नॉर्थ. बट मोस्ट ऑफ द मैप्स देयर दिस नॉर्थ लाइन हैज बीन आइडेंटिफाइड देयर. तो हमें देखना है वहाँ पे कि नॉर्थ लाइन जो है तो ये शोज इट वाज इन्वेंटेड बाय द Egyptian geographer. Very important point. And my dear students, the people of the Alaska, Greenland, Canada, in the past they were who are called Eskimos, who lived near the poles in snow houses which are called igloos. आपने पढ़ा होगा इग्लो.
igloo, snow house, snow blocked house. So the people who live there are called Eskimos. Those Eskimos, they lived also in animal tents, because they mostly hunt animals. What they did, they sometimes they cut off a piece of animal skin, of a dark animal leather. They cut it, and they sewn it on a light colored animal skin, and they show coastal islands. इन कोस्टल आइलैंड्स दिखाने के लिए वो एक डार्क एनिमल स्किन को काट बीच में काटते थे, और उस पैच को, उस सिंबल को वो दिखाते थे किसमें, लाइट कलर्ड एनिमल स्किन में वो दिखाते थे, वहाँ पर ये कोस्टल आइलैंड है. तो दिस वाज द वे, दिस वाज द टेक्निक, दिस वाज द स्किल in those days. But nowadays we have maps. The map जो है, there are three types of maps. There are three types of maps. One is physical map. Physical map. Physical map कहेंगे, relief map भी कह सकते हैं हम. Relief map. Physical map, relief map. Maps which show natural features of the earth. In physical map, we can study the physical features of the earth, the natural features of the earth, that are the mountains, plains, plateaus, continents, oceans, rivers, etc. These are physical features. When we study physical features, when a map shows physical features, that map is called a physical map or relief map. So, if we have a map, we are going to see, to know about, study about the mountains, the plains, the plateaus, the continents, the oceans, the rivers, etc. We have to study the physical map, or called the relief map. Number two is political map. Number one, number two is political map. Political map. In political map shows the countries, the states, the districts, the cities, villages, etc. So, if we have to study, अगर हमें पढ़ना है, देखना है क्या, द कंट्रीज, दुनिया के ममालिक कितने कंट्रीज है, कौन सी कंट्री हमें रीड करना है, या स्टेट्स को, या डिस्ट्रिक्ट्स को, या सिटीज़ को, या विलेज को, तो उसके लिए है दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. सो वी कैन से अ पॉलिटिकल मैप शोज द कंट्रीज, द स्टेट्स, the districts, the cities, the villages. It is called a political map. Then there is thematic map. Number third, thematic map. Thematic map. Thematic map means a specific, when specific information is given in a map. Suppose we have distribution of forests. Distribution of forests. हमें देखना है जंगलात, डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट्स, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जंगलात है. तो
इसके लिए क्या है, थीमेटिक मैप है। तो या हम क्या लिख सकते हैं, इंडस्ट्रीज को दिखाएंगे हम, इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए थीमेटिक मैप है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज है या इसके लिए है, थीमेटिक मैप के लिए है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, या हम रोड मैप्स जो हमारे पास होते हैं, रोड मैप्स हमें पता होना चाहिए कि कौन रोड क्या कहाँ जाता है, श्रीनगर टू जम्मू, जम्मू टू दिल्ली, दिल्ली टू अजमेर, या जो भी रोड्स हैं हमारे JNK में है, लद्दाख में है, या सारे हिंदुस्तान में जो रोड सड़कें हैं, उनको देखने के लिए वो क्या है, तो वो भी इसी में आते हैं, थीमेटिक मैप्स में आते हैं। वो थीमेटिक मैप्स कैन शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, रोड मैप्स, इंडस्ट्रीज और रेनफॉल। हम देख सकते हैं रेनफॉल जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहाँ कहाँ बारिश ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर नहीं होती है मुल्क में बारिश। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल जो मैप हमें दिखाता है उसको भी कहते हैं थीमेटिक मैप। सो मैप्स ऑफ आर 3 काइंड्स, वन इज फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आगे थोड़ा चलेंगे। तो देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द मैप्स, there are 3 pillars of the map, or we can say 3 components of the map. 3 components of the map. There are 3 components of map. मैप के 3 components होते हैं या 3 pillars होते हैं। Number 1 is distance. Distance is very important component of a map, क्योंकि if we have to know, अगर मैं देखना है, अगर मैं समझना है कि 2 जगहों के बारे में, हम 2 प्लेस को लेते हैं, उनकी डिस्टेंस क्या है, उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो हम एक थ्रेड ले लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक थ्रेड लेंगे हम, दो जगहों को ले लीजिए, यहाँ पर इनको मिलाइए आपस में। तो ये जो इस थ्रेड को हम देखते हैं इनकी डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए और इस डिस्टेंस ये देखने है कि कितनी डिस्टेंस हमारे ग्राउंड पे, जमीन पे है, और मैप में वो डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे हम, तो वो इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए जरूरी हमारे पास है, दैट इज स्केल। स्केल का होना बहुत जरूरी है। अगर हम डिस्टेंस को समझना चाहते हैं, टू नो, टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस on the ground and that distance, how to show that distance on the map, तो इसके लिए एक स्केल का होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज स्केल। स्केल क्या होता है, व्हाट इज स्केल? कि स्केल के बगैर मैप नहीं हो सकता। कोई भी मैप विदाउट स्केल वी कैन कॉल दैट स्केच, दैट इज कॉल्ड रफ ड्राइंग। अगर स्केल मैप नहीं होगा तो a scale is a proportion. A scale is a proportion or ratio. Proportion or ratio. A scale is a proportion of ratio between the actual distance, between the actual distance between the actual distance on the ground, ground, between actual distance on the ground and the distance on the map, and the distance on the map. अब स्केल क्या है? A scale is a proportion or ratio between the actual distance, जो actual distance जमीन पे है, on the ground and the distance on the map. तो हम किस तरह दिखाएंगे actual distance on the ground? तो हम मैप पर कैसे दिखाएंगे? Suppose my dear students,
तो अगर आपके स्कूल फ्रॉम योर होम, आपके घर से तकरीबन आपको स्कूल जाना है, अगर ये 10 किलोमीटर्स है, अगर आपके स्कूल, आपके घर से आपके स्कूल तक 10 किलोमीटर का फासला है, 10 किलोमीटर का फासला है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको मैप में आपको दिखाना है, तो आप देखेंगे कि ऐसे मैप पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर्स on the map, 2 centimeters on the map shows 10 kilometers, 10 kilometers on the ground, on the ground. So आपका मैप, आपका जो स्केल होगा वो ऐसे होगा, 1 सेंटीमीटर is equal to 5 kilometers. So we can show कि जो होम से स्कूल तक आपके 10 किलोमीटर की दूरी है, अगर हम इसी 10 किलोमीटर को यहाँ पर दिखाएंगे तो एक स्केल की सूरत में, अगर हम स्केल यहाँ पर खींचेंगे, आपको स्केल खींचनी है यहाँ पे, और वहाँ पर क्या करना है कि आप ये पर ये देखेंगे आपके, आप इसको 5 में तकसीम करेंगे, उसका मतलब है कि ये 1 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो उस सूरत में, क्योंकि हम एक्चुअल पार्ट को मैप में नहीं देख सकते, क्योंकि एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है, स्केल क्या होता है, इट रिड्यूस द डिस्टेंस, इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड द मैप. जो ग्राउंड पर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रिड्यूस करता है, ये इससे स्केल से होता है. कुछ स्केल ने डिस्टेंस रिड्यूस की, कम की, और तब हम लिख सकते हैं कि यहाँ मैप में जो 1 सेंटीमीटर लेते हैं, जब मैप खींचते हैं हम 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं, यहाँ तक हम कहेंगे ये क्या है, ये एक 5 किलोमीटर, इट शोज 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो इस तरह हम स्केल की वजह से हम डिस्टेंस को मेजर करें. डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, और स्केल हमें इसमें हेल्प करेंगे कि किस तरह. और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, स्केल के बाद है डायरेक्शन. डायरेक्शन, डिस्टेंस एक पिलर है, दूसरा पिलर है डायरेक्शन. तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शंस ऑफ द प्लेस. तो डायरेक्शन में क्या करना है हमें, कि जैसे टोलमी ने दे दिया, जो इजिप्ट का ज्योग्राफर था उसे दे दिया ये डायरेक्शन. तो एक नॉर्थ लाइन होती है, जो मैंने पहले कहा आपको, मैप एक नॉर्थ लाइन होती है ऐसे, तो इसको कहते हैं जो नॉर्थ लाइन, इट मीन्स इट शो टुवर्ड्स द नॉर्थ. और एक ऐसे होते डायरेक्शंस होते हैं, जब नॉर्थ डायरेक्शन होती है यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, हो गया नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, हो गया नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, हो गया साउथ वेस्ट, और ऐसे ड्रॉ करेंगे साउथ ईस्ट. सो ये जो है, ये डायरेक्शन जो है, अगर हमें पता चलना चाहिए कि इससे हमें पता चलेगा कि कौन कंट्री कहाँ पर है, कौन प्लेस कहाँ पर है, वो डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. तो उसके डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके लिए, उसके बाद क्या है, तो डायरेक्शन के लिए और एक चीज़ है, आप कंपास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपास क्या होता है, एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मेटेलिक एक नीडल होती है, दैट शोज ऑलवेज दैट मेटेलिक जो नीडल होती है, जिसमें सुई होती है कंपास में, जो कभी हमें मैसन जो ने मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं, वो किबला नुमा आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ तक किबला कहाँ की तरफ है, तो वो रखा जाता है यहाँ पे. दैट वो उसमें जो नीडल होती है वो होता है नॉर्थ साउथ, दैट मिडल शोज नॉर्थ साउथ. हमें बीच में लगा पता चलता है कि ये किबला है. तो दैट कंपास इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे भी आप डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, कंपास इसलिए इंस्ट्रूमेंट है. तो उसके बाद क्या है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंबल्स. सिंबल्स जो है, क्योंकि हम जमीन के फीचर्स को, कंटेनर्स, कंट्रीज, स्टेट्स, रिवर्स, ओशंस या माउंटेन्स, प्लेट्स को हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, तो हम थ्रू सिंबल्स दिखा सकते हैं. तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सिंबल्स. जो सिंबल्स दे दिए गए हैं, अगर हम किसी रीजन में, किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ के ज़मीन के फीचर्स के बारे में देखना चाहते हैं, तो हमें ऑलरेडी एक सिंबल्स, जो हम पर सिंबल्स दे दिए गए हैं, उन सिंबल्स के थ्रू से हम देख सकते हैं. जैसे कि हम बिल्लू को आइडेंटिफाई करते हैं वाटर,
अगर हम ब्लू देखते हैं ग्लोब पर तो ये वाटर को ज़ाहिर करता है, रिवर्स को ज़ाहिर करता है, लोलैंड्स को ज़ाहिर करता है। इसी तरह हम लेते हैं ब्राउन कलर माउंटेन्स को ज़ाहिर करता है। इसी तरह हम लिखते हैं कि ये जो हमारे जो कलर जो होते हैं या लेटर जो होते हैं, हम लिखे किसी जगह हम लिखे PS लिखा होता है, ऐसे वर्ड कोई लेटर, इसका मतलब पुलिस स्टेशन। किस जगह कहाँ पर होता है पोस्ट ऑफिस, PO पोस्ट ऑफिस, PTO लिखा है कि पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस लिखा है। तो इससे पता चलता है कि सिंबल से हम पता चलता है कि सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल जो है, सिंबल से हमें एक तो स्पेस बचते हैं मैप में, दूसरे हमें मैप की लैंग्वेज पता चलती है। तो सिंबल्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द मैप। These are three pillars of the map, that was distance and direction and the symbol. These are three important pillars of the map. So जो सिंबल जो होता है, सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंबल्स को हम डिफरेंट सिंबल्स को दिखा सकते हैं मैप में, तो ताकि हम किसी जगह को जाहिर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चूँकि वक्त की कमी की वजह से मैं सबक नहीं था, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में और दिखाएंगे आपको आपके मैप्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत।